Assalamu alaikum, dear students. Again, welcome to class 8. Subject is General Science. आज हम दोबारा एक अच्छी दुआ से आगाज करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल काम दरपेश होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ए जिंदा, ए कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए मदद मांगता हूँ। आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आजकल क्योंकि बहुत मुश्किल दरपेश है इस बीमारी में, तो इस दुआ की कसरत किया करें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। वी वर working on chapter number 4 and our topic, that is a continuation of previous lecture. Our previous lecture was about the changing speed and direction, in which we talked about balanced and unbalanced forces. As I told you that the forces will be balanced when net force acting on the body, that is 0, and we will have unbalanced forces if the net force acting on the body that will not equal to 0. Today we will talk about famous Newton's first law of motion. Newton gave 3 laws of motion which are about force and motion, but here we will only discuss Newton's first law of motion. First of all, some background of this law. Sir Isaac Newton, born in 1643 and died in 1727, was an English scientist and mathematician famous for his discovery of laws of gravity, and also he discovered the 3 laws of motion. He published them in his famous book Mathematical Principles of Natural Philosophy in 1687. Today these laws are known as Newton's laws of motion and describe the motion of all objects on the scale we experience in our everyday lives. As I told you that we will only concentrate on Newton's first law of motion. Now come to the definition of Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue its motion unless some unbalanced force acts on it. This law has 2 parts. A body at rest will remain at rest, and its second part, a body in motion will continue its motion. But there is a condition that this will happen unless some unbalanced force acts on it. Means if no unbalanced force is acting upon a body, then the body, if it is at rest, it will remain at rest.
its motion that will be zero, and a body in motion will continue its motion. Now come to first part of the law. A body at rest will remain at rest. It is a common day experience that if we leave something at any place, it will remain there unless we apply some force on it. Example of this school chair: you left school in March, and inshallah, when you will come to school, if the chairs are not disturbed by some external force, you will see that all the chairs will have the same position. जो बॉडी जिस जगह पर मौजूद है वो उसी जगह पर उसी हालत में रहेगी उस वक्त तक जिस वक्त तक कोई आप एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट नहीं करती। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है और बड़ी समझ आने वाली बात है। घर में जो टेबल पड़ी हुई है, आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं, घर में और बाकी जितनी चीजें पड़ी हुई हैं, जहां पर पड़ी हुई हैं अगले दिन भी वो वहां पर ही होती हैं, उनकी पोजीशन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। तो न्यूटन भी यही कहता है कि वो जो चीज रेस्ट पे है वो फॉर एवर रेस्ट में रहेगी अनलेस सम अनबैलेंस्ड फोर्स दैट एक्ट ऑन इट। नाउ इट्स सेकंड पार्ट, part 2, that is, a body in motion will continue its motion. The second part इसका है, if the body that is in motion, it will continue its motion. But our common day experience is that the bodies they come to rest after covering some distance. It seems to be against the Newton's first law of motion, but if we go into the details, it is not so. वैसे तो ये है कि अगर ये आपको बाल नजर आ रहा है, बाल को अगर आप जो हिट करते हैं, जितने ही जोर से आप हिट करते हैं, अगर पहले बॉल जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो मूव कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो वो कम हो जाएगी, एट लास्ट इट विल कम टू रेस्ट। इसी तरीके से अगर आप एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद सम वेलोसिटी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर वो वहां से वापस आता है ग्राउंड के ऊपर जो आ जाता है। तो ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो बॉडी मोशन में होती है, कुछ टाइम के बाद वो उसकी मोशन जो वो सीज हो जाती है। लेकिन न्यूटन ये कहता है दैट द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन फॉरएवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमने जो है वो जवाब तलाश करना है, व्हाई इट इज सो। इट इज सो बिकॉज ऑफ द opposing force, which are also known as the forces of friction. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक वो मिसाल देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस ग्रास पर कंपैरेटिवली फ्रिक्शन ज्यादा होती है, आप आसानी के साथ चल सकते हैं। अगर हमारे पास ये मार्बल सरफेस है, मार्बल सरफेस के ऊपर कंपैरेटिवली फ्रिक्शन जो वो कम होती है, और इसी तरीके से अगर हमारे पास आइस हो, आइस पर फ्रिक्शन जो है वो मजीद या वो कम होती है। अगर आपके पास वो बॉल्स हैं, आप एक ही स्पीड के साथ
तीनों सरफेस पर जो उनको मूव करवाएं. फर्स्ट on the grass, second one that on the marble floor, and third one that is on the ice. In these three cases, your result that will be different. The ball will cover less distance on the grass. After covering some distance, it will come to rest. And on the marble, it will cover more distance than that on the grass. But after covering some distance, it will come to rest. And on the ice, it will cover more distance as compared to marble floor or on the grass. So you can conclude from this example that where the frictional force is less, the movement is greater. The distance covered that is greater. तो अगर हमारे पास आइस के ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है, अगर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें that if there is no opposing force, that is the force of friction, then if you move the body with some velocity, the body that will move with the same velocity in the same direction forever. इसके लिए कोई दलील, कोई एग्जांपल? Yes, we have the example of planets which are moving around the sun, or the spacecraft which is put into the space. स्पेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो स्पेस क्राफ्ट है वो फॉर एवर उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा था, हालांकि उसमें किसी किस्म का कोई इंजन नहीं है. जिस स्पीड से वो स्पेस में दाखिल होता है उसी स्पीड के साथ मूव करता रहता है. अर्थ है, अर्थ में किसी किस्म कोई ऐसी चीज नहीं है, इंजन नहीं है जो उसको मूव करवा रहा है, लेकिन बैलेंस फोर्सेस हैं जो जिस स्पीड से अर्थ बनी है, जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से अभी भी जो वो मूव कर रही है. तो ये जितने भी जो heavenly objects है which are revolving around the sun, they are the good example of Newton's first law of motion. Now, ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं. In the absence of the friction, the body will continue its motion forever. वो हमेशा फॉर एवर, जैसे ये हमारे पास सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बॉडीज है वो फॉर एवर जो वो मूव करती रहेंगी. Now, this was all about Newton's first law of motion. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से रीकैप कर दूं. That in the absence of any external force, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर अगर जो है वो नहीं लग रही है, if net force that is zero, then if a body that is at rest position, the body that will remain in rest forever. Similarly, if the body that is in motion and if no external force acting on it, means net external force, net force उसके ऊपर जो वो zero है, then the body that will move with the same speed in the same direction forever. This is Newton's first law of motion. ये मैंने आप लोगों को बच्चों एक बेसिक कंसेप्ट दी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन
हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह 9th क्लास में जिस वक्त आप होंगे तो हम उसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आती डजेंट मैटर। जिस वक्त अगर आप एक गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, बस के अंदर मौजूद हैं, व्हेन योर स्कूल बस स्टार्ट्स मूविंग, इफ यू आर स्टैंडिंग इन इट, तो जैसी बस वो मूव करना शुरू करती है, आपको झटका लगता है और आप हमेशा पीछे की तरफ करते हैं। सिमिलरली, जैसे बस चलना शुरू हो जाती है, आप जो गाड़ी के अंदर जो वो आराम से खड़े हैं, जिस वक्त वो अचानक जिस वक्त ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, आप आगे की तरफ वो करते हैं। तो ये भी हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। रीजन इसकी, जिस वक्त आप गाड़ी में खड़े हैं, यू आर इन रेस्ट पोजीशन, द बस इज आल्सो एट द रेस्ट पोजीशन। जिस वक्त इंजन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो गाड़ी आगे मूव करती है, योर बॉडी रिमेन एट द रेस्ट पोजीशन, वो उसी रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। और इसी कोशिश की बिना पे यार रह नहीं सकती है, सिर्फ कोशिश कर सकती है, क्योंकि गाड़ी मूव करे उसके बाद मूव करना है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको पीछे की तरफ आपका जो बॉडी है उसी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, गाड़ी आगे मूव करी, आपका लोअर पार्ट वो आगे मूव कर जाता है और आप पीछे की तरफ जो वो गिरते हैं। सिमिलरली, जिस वक्त गाड़ी स्टॉप करती है, नो योर यू एंड द योर बॉडी एंड स्कूल बस बोथ आर इन मोशन। जैसे न्यूटन लॉ कहता है कि जो बॉडी मोशन में वो मोशन में ही रहती है। या मैं इसमें और थोड़े आसान अल्फाज में कहूँ, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। तो जैसी ब्रेक सप्लाई कर फ्रिक्शनल फोर्सेस लगती हैं, ब्रेक सप्लाई होती है, वो रुक जाती है, तो आपका जो लोअर पार्ट है उसी बस के साथ है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट है, चूंकि मोशन में, वो तो मोशन में रहने की कोशिश करता है, नतीजे के तौर पे आपकी बॉडी को आगे जो है वो एक झटका जो वो लगता है, झटका आपको महसूस होता है। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ देयर इज अ टेस्ट फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू, you have to write these question in your neat notebooks और फिर आपने इसको याद भी करना है। नंबर 1, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इसका आंसर आपको इसी में से जो मिल जाएगा, जस्ट आपने इसको डेफिनेशन जो वो लिखनी है। दूसरा, व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यकीनन आपको जवाब मिल गया होगा, आपने उसमें से जवाब जो वो लिख लेना है। जो मैंने अभी जो डिस्कशन की है उसी में से कोई कंडीशन आपने निकाल लेनी है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका जो आंसर करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट वन, explain why a spaceship keeps moving in outer space without engine to push it along। क्यों यानी कि स्पेसशिप जो है जो आउटर स्पेस में मूव करता रहता है, हालांकि उसमें किसी किस्म का कोई इंजन नहीं होता, वो उसमें इसके बावजूद भी मूव करता रहता है। आप लोगों ने जो मैंने आप दोबारा लेके आप सुने, उसमें से आंसर लेने की कोशिश करें। इसके अलावा आपकी बुक्स पेज 51 उसको जो वो देखें, उसको पढ़ें और उसमें से आपको इसका आंसर जो मिल जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ इसकी क्वेश्चन हमारे पास जो वो इसी के साथ वो मुकम्मल हो गए। नो अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानी नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।